Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study about the breakfast cereal technology. Previously, we studied about the introduction of breakfast cereal, why they are necessary, why there is need of breakfast cereal. Again, we will have a look at why they are necessary and what kind of industries we have developed. And the breakfast cereal industry is one of the most versatile in terms of products and technology. Products are convenient and practical because most do not need cooking and preparation, and they possess a prolonged shelf life. Breakfast cereals are divided into two broad categories: hot are ready to eat, and the other one is those which we need a little bit cooking. Most are characterized as RTE because they do not need any further cooking at home. मार्केट में भी जब आप जाते हैं कैलॉग्स या फौजी वालों के जितने भी सीरियल्स हैं ये मोस्टली इतने ज़्यादा कुक्ड होते हैं कि आप इनको हॉट मिल्क के अंदर ऐड करते हैं एंड दे आर रेडी टू ईट. Chocos हो गए, Kellogg's हो गए. Sorry, I couldn't add those pictures in this video, in this presentation, but I will show you later. The industry has grown because of the increasing number of working housewives and to keep pace with the new consumer trends. I have already told that बाहर की countries में तो because housewives जो हैं वो ज़्यादा working हैं, they don't have time to prepare proper breakfast for their families. So they in foreign countries the breakfast cereals are very much in vogue. Breakfast cereals are very important because they constitute the first meal of the day and are considered highly nutritious because they do not contain significant amount of fat and do contain important amounts of essential vitamins and minerals. They are almost always served with milk, which complements their nutritional value. Milk is high in protein, calcium, magnesium, and other essential nutrients that balance a cereal based breakfast food designed to provide high energy and micronutrients. Even बहुत सारे breakfast cereals ऐसे हैं जिसके अंदर dried milk ऐड किया जाता है to complement the cereal products. Breakfast cereals are normally flavored with sugar or sweeteners and non-diastatic malt. In some instances, dehydrated fruits and nuts are blended with finished products. In case of muesli, मूसली एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर फ्रूट्स और नट्स को भी डिहाइड्रेट करके जो है वो ऐड किया जाता है. जब इसको रिहाइड्रेट किया जाता है बाय एडिंग वाटर, तो क्या होता है कि ये जो है बिल्कुल फ्रेश एंड टेस्ट देते हैं. मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रेकफास्ट सीरियल इन्वॉल्व अप्रोप्रिएट सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, हाईली sophisticated production step, and stringent quality control programs. Breakfast cereal do not contain a significant amount of moisture in order to preserve the texture and guarantee their microbial stability. Packaging material and technologies play an important role in preserving the typical characteristics or finished products. In some instances, in some instances, in most instances the packaging costs more than the edible product. Exactly, क्योंकि पैकेजिंग जो है अब तक appropriate नहीं होगी तब तक हमारी जो है प्रोडक्ट जो है वो उसकी शेल्फ लाइफ स्टेबिलिटी नहीं होगी. फॉर एग्जांपल ये मोस्टली या दूसरी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमारे पास आती हैं एल्युमिनियम फॉइलिंग के अंदर. तो एल्युमिनियम फॉइलिंग और प्लस उसके बाद अगेन उसकी पैकेजिंग, इसके अलावा टिन पैक्स के अंदर भी ये वाले ब्रेकफास्ट सीरियल्स आते हैं जैसे क्वैकर ओट्स हैं. तो टिन पैक्स की कॉस्ट जो है वो पैकेजिंग कॉस्ट जो है वो कंपेयर टू द प्रोडक्ट इनसाइड दैट वो ज़्यादा होती है. Breakfast cereal consumption in developed countries had increased steadily, especially since the 1960s. The Irish, English, Australian, North Americans are the main per capita consumers with annual intakes 4 to 6 kg. In the United States, the ready to eat market exceeds yearly sales of $6.8 billion. The multi billion industry has been dominated by relatively few key and large producers such as Kellogg's, जनरल मिल्स, पोस्ट, क्वेकर ओट्स एंड वीटाबिक्स. वीटाबिक्स भी आपने मार्केट में देखा होगा, कैलॉग्स भी. अच्छा स्टूडेंट्स, आप इनकी मार्केट प्राइस देखें, आप इनकी मार्केट प्राइस देखें, इतनी ज़्यादा है कि हाफ के जी का पैक जो है वो 700-800 में मिलेगा आपको. अगर आप हाफ के जी कॉर्न ख़रीदते हैं तो क्या वो 700-800 रुपये की होती है. तो क्या चीज़ है बेसिकली, एक है प्रोसेसिंग करके वैल्यू ऐड कर रहे हैं. दूसरी बात ये है
वैल्यू एडिशन के बाद उसकी पैकेजिंग, तीसरी चीज़ क्योंकि ये इम्पोर्टेड है तो इसके ऊपर जो कस्टमर ड्यूटी होती है वो मतलब टैक्सेस वगैरह पे करके तो इसकी प्राइस 800 900 इवन 1000 तक हाफ के जी का पैक जो है वो आपको मिलेगा. Today, breakfast cereals are grouped into at least 12 general categories depending on their manufacturing processes. Most secret formulas use decorticated grains and a combination of refined grits and are flowed from cereals such as maize, wheat, rice and oats. Mainly ये चारों cereals हैं maize, wheat, rice और oats जिससे बनते हैं depending upon your final customers. ये customer जो है वो भी फिर target करता है जैसे बच्चों में mostly rice based हम पसंद करते हैं. जो लोग जिन लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम है वो व्हीट बेस्ड नहीं लेंगे. दे मोस्टली यूज टू ईट ओट्स एंड मीज. द न्यू इंडस्ट्री ट्रेंड इज द यूज ऑफ होल ग्रेन्स और ब्रांड्स टू इंक्रीज डाइटरी फाइबर. ओट फ्लावर इज द प्रेफर्ड रॉ मटेरियल. ओट फ्लावर क्यों प्रेफर्ड रॉ मटेरियल है? क्योंकि इसके अंदर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन दी production in the milling technology of oats that they are enriched with uh, polyunsaturated fatty acids, then the fat quantity is higher as compared to the other cereals. So secondly their taste is quite good. Third and number three, they have a very good dietary fiber, soluble dietary fiber in them. And इसके अंदर उसके बाद salt, sugar, दूसरे sweeteners, colorants, flavorings ऐड की जाती हैं इसके appearance, palatability and overall acceptability को improve करने के लिए. Industry has traditionally enriched products with selected minerals and vitamins since the enrichment program was enacted after the Second World War. During the past years, the industry has launched new products due to increasing demand for high fiber and nutraceutical products. ओके, अभी हम इसकी प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं कि जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन से होती है, फिर हम उसको कुक करते हैं, फॉर्म करते हैं, फिर आइदर बेकिंग होती है, एक्सट्रूजन होती है, या उसकी पैलेट्स बनते हैं, फिर उसकी फ्लेवर इनरिचिंग होती है एंड पैकेजिंग होती है. जो मेन है वो यही है. कुकिंग इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू जेलेटनाइज द स्टार्च एंड टू प्रोड्यूस doughs that can be mechanically sheeted, shaped, or formed. It is generally performed in pressure cookers, open steam jacketed cookers and with continuous screw extruders. ये जो हमारे पास कुकिंग के लिए हैं प्रेशर कुकर्स, ओपन स्टीम जैकेटेड कुकर्स और कंटिन्यूस screw extruders. Pressure and steam cookers are usually used to process grains or large grits, whereas extruders are used to process smaller grits, semolinas, meals, and even flours. कुकिंग इज एम्ड एट द, जैसे कि पीछे बताया गया है कि जेलेटिनाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं. जितना ज़्यादा जेलेटिनाइज स्टार्च होगा उतना डाइजेस्टिबल ज़्यादा होगा. एंड पेस्टिंग ऑफ द स्टार्च granules accompanying with water diffusion into the raw material. The moisture and starch modifications are required for adequate sheeting, shaping, and forming. Extrusion is used to manufacture two major categories of products: direct expanded or pellets. जो डायरेक्ट एक्सपेंडेड होते हैं वो ये जैसे इसकी एग्जांपल है हमारे पास ये जो कॉर्न के ये कॉर्न एक मिनट. ओके, एक्सट्रूजन की जो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है वो है ये पॉपकॉर्न्स. पॉपकॉर्न्स क्या करते हैं, इनकी डायरेक्ट एक्सपेंशन हो जाती है इसकी जब आप उसको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट देते हैं विद इन प्रेशर तो वो जो स्टार्च है वो सारा एक्सपेंड हो जाता है. ठीक है, एक ये एग्जांपल है. दूसरी होती है पैलेट. पैलेट क्या होता है? Half are intermediate products because they are shelf stable and must undergo additional processes before they are ready for the consumer. They are generally flaked or expanded. आपने पैलेट्स जो होते हैं वो क्या एक्सपैंड हो गया, एक्सपेंडिंग के बाद जो है आपने उसकी प्रेसिंग की है. जब प्रेसिंग हो जाती है तो वो एडिशनल प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो कंज्यूमर के लिए रेडी हो जाता है. दे आर जनरली फ्लेक्ड और एक्सपेंडेड इन पफिंग गन्स आर स्पेशल ovens. The performed configuration are usually baked in continuous ovens to enhance flavor, texture, and color. Two types of ovens are generally used. Rotary ovens are the standard of the industry because they are used to produce flakes and oven puffed products. Most of the heat transfer in these ovens is by convection. सेकेंड इज़ फ्लैट बैंड और कन्वेयर ओवंस. ये ज़्यादातर लार्ज प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनकी श्रेडिंग एंड कंप्रेस्ड फ्लेक्ड प्रोडक्ट्स दे आर बेक्ड इन द फिक्स पोजीशन. ये नॉर्मली ऐसे होता है कि हम
अब मिलिंग के बाद जो है जो स्टार्च जेलेटिनाइजेशन करते हैं, मतलब अब कंप्लीट होल ग्रेन्स लेके उनकी जो है वो मिलिंग करके, तो उसमें वाटर ऐड करके उसकी स्टार्च जेलेटिनाइजेशन कुकिंग करने के बाद जब वो शीट्स बन जाती हैं, फिर उन शीट्स की श्रेडिंग एंड कंप्रेसिंग फ्लेक प्रोडक्ट्स में baked in a fixed position. In this type of form, the heat is mainly transferred by convection. Flat band और कन्वेयर में कंडक्शन के थ्रू होती है, डायरेक्ट हीट हो रही होती है. रोटरी ओवंस में कन्वेक्शन के थ्रू हो रही होती है, डायरेक्ट टच नहीं कर रही होती फ्लेम आपके प्रोडक्ट को. Baking greatly affects the sensory properties of the breakfast cereals. Textures and bowl life are achieved during this critical step. The high baking temperature destroy some of the vitamins, and therefore these are normally added after this thermal step. यानी वो जो fortification या addition की बात कर रहे हैं vitamins की, वो baking के बाद करते हैं normally, क्योंकि natural जो vitamins present होते हैं इतनी cooking के बाद तो वो lost हो जाते हैं. Baked or toasted cereals commonly flavored and sweetened with topical coating of the liquid sprays and dry powders online are applied inside coating drum. इसकी एग्जाम्पल चोकोज हैं. चोकोज के ऊपर जो चॉकलेट की कोटिंग की जाती है, वो exactly the example of this flavoring or sweetening. The coating usually contains part of the enrichment premix that is heat labile. The encapsulation of such of the coating ingredients allows for extension of the bowl life and crispiness, especially as a product is consumed with milk. Furthermore, additives such as antioxidants can be added to the product that contain nuts to prevent rancidity. Exactly. मूसली में जो है क्योंकि nuts present होते हैं, इसलिए इसमें हम कुछ additives भी डालते हैं as an antioxidant. Packaging is essential for the preservation of breakfast cereal, especially in terms of texture. The materials used typically include printed paperboard cartons, protective liners, जो बॉक्स होता है, अगर आप कभी देखें कैलॉग्स का बॉक्स ओपन करें तो बाहर से वो गत्ते का प्रिंटेड पेपर बोर्ड होता है और अंदर से वो प्रोटेक्टिव लाइनर, अंदर उसके एक चमकती हुई एल्युमिनियम फॉयल की जैसी शीट लगी होती है. And pre-made bags, form filled and sealed. Most products are packaged in modular bag in box. जैसे आप एक बॉक्स है उसके अंदर से जब निकालते हैं तो एल्यूमिनियम फॉयल में या जो है पॉलीएथिलीन बैग के अंदर जो है वो एक पैक हुआ होता है, फिर आप उसको यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड एज बैग इन बॉक्स लाइन्स इक्विप्ड विद बैग फॉर्म फिल मशीन एंड हाई स्पीड कार्टन्स. क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेकफास्ट सीरियल्स में हम डिपेंड करता है कि ये ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बेस पर भी क्लासिफाई करते हैं और टाइप ऑफ रॉ मटेरियल की बेस पे भी. जब हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल प्रोसेस्ड फ्लेक्स, एक्सट्रूडेड फ्लेक्स, oven puffed cereals, gun puffed whole grains, extruded expanded, co-filled extruded expanded, shredded whole grains, extruded shredded products, filled bite-sized shredded wheat, baked cereals, granulas, compressed flake biscuits, इसकी एग्जांपल वीटाबिक्स है, एंड मूसली टाइप प्रोडक्ट्स. मूसली तो मूसली है जिसमें नट्स और दूसरी फ्लेवरिंग चीज़ें ऐड होती हैं. द मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन इज डोमिनेटेड बाय फ्लेक. फ्लेक जो होते हैं वो एक तो ये कि टेस्ट वाइज कुछ बेटर होते हैं, इसके अलावा पफ्ड जो हैं प्रोडक्ट जैसे ओवन एक्सट्रूडेड एंड गन पफ्ड प्रोडक्ट्स. मोस्ट ब्रेकफास्ट सीरियल्स वर फर्स्ट मेड बाय द ट्रेडिशनल प्रोसेस दैट लेटर ऑन इवॉल्व्ड इनटू द एक्सट्रूजन. Extrusion offers the advantage of more versatility, faster production rate, lower investment and energy, and personal savings. Flakes, shredded, and oven puffed are typical example of products that can be manufactured following the traditional process or from extrusion. ओके, अगर हम बात करते हैं ओट्स की, तो देर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ फ्लेक्स. एक तो है रोल्ड और फ्लेक्ड ओट्स. द ओट प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बिकॉज फ्लेक्स आर नॉट एक्सटेंसिवली कुक्ड nor are they toasted. As a result, oat flakes have quite a different texture compared to corn. We cannot toast them because इसके अंदर जो जो हाई लिपिड कंटेंट है उनकी, इसको सिर्फ क्या करते हैं
जेलेटिनाइज करते हैं यानी पफिंग करते हैं और उसके बाद इसके जो इसकी प्रेसिंग करते हैं, ठीक है। Wheat or rice flakes, the basic process starts when whole oat kernels are heat treated to inactivate lipases and lipoxygenases. These enzymes catalyze undesirable oxidation and rancidity reactions. Needless to say, this is considered the most critical operation because it greatly influences flavor, aroma, and shelf life. The husked caryopsis are then dehulled by abrasion to yield groats. ये सारा प्रोसेस हमने इसकी मिलिंग के दौरान किया हुआ है। वो ग्रोट्स जो हैं उनको लार्ज पीसेस में कट करते हैं, फ्लेक्स करते हैं एज अ होल ग्रेन। फाइनल प्रोडक्ट उसको क्लासिफाइड एज हॉट सीरियल नीड टू बी कुक्ड बिफोर कंजम्पशन बिकॉज द ग्रेन रिसीव द हीट ट्रीटमेंट ओनली टू इनएक्टिवेट लाइपोलिटिक एंजाइम। इसलिए ये जो ओट के फ्लेक्स होते हैं इनको माइनर कुकिंग 1-2 मिनट की ज़रूरी होती है। जनरली रेगुलर ओट फ्लेक्स रिक्वायर 5 to 15 मिनट ऑफ कुकिंग। हम तो घर के अंदर नॉर्मली अगर आप 2-3 मिनट की कुकिंग भी करें तो दैट विल बी इनफ। इज दिस फ्लो डायग्राम oats cleaning. Again it's almost the same you have done in oats milling. वहाँ पर ग्रोट्स आ जाते हैं, ग्रोट्स में फिर कटिंग, फ्लेकिंग। कटिंग में जो हमारे पास आते हैं वो स्टील कट ओट्स की बात हमने पहले भी की हुई है। स्टील कट ओट, फिर इनकी स्टीमिंग होती है, स्टीमिंग के बाद फ्लेकिंग, रोलिंग, स्क्रीनिंग और क्विक कुकिंग फ्लेक्स हमारे पास बन जाते हैं। दिस पिक्चर इज ऑलमोस्ट द सेम वी स्टडीड इन द मिलिंग ऑफ ओट्स। So I don't think so there is more need to talk on it. Traditional process of corn की जहाँ हम बात करें तो traditional flake cereals are produced from whole grains decorticated de-jumped kernels, यानी हमने उसकी कॉर्टिकल जो उसकी कॉर्टिकल लेयर है वो भी रिमूव कर देनी है और उसकी डी जर्मिंग भी कर देनी है। एंड रिफाइंड मिल्क फ्रैक्शंस फ्रॉम मेज, राइस एंड अदर सीरियल्स। आपको जो आगे फ्लो डायग्राम एक दिखाई जाएगी वो कंबाइंड होगी मेज, राइस एंड व्हीट की, लेकिन मैं एक सिंप्लीफाइड कॉर्न फ्लेक प्रोडक्शन की डायग्राम भी ऐड की है इसके अंदर। सो यू कैन सी के द सिलेक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल इज देयरफॉर critically important the finished properties of the flakes. Cornflakes is still the most popular breakfast cereal in the world. Dr. Kellogg's developed the traditional process at the beginning of the 20th century. Even 100 years later, this breakfast cereal is still manufactured following the same basic steps. The process starts with careful raw material selection. Grits from yellow maize are preferred because of their stronger flavor and rich golden color after toasting. The characteristics of the final flakes are closely related to the properties of the flaking grits. So here's the complete process. The most suitable grits are obtained from dent yellow maize with intermediate to hard endosperm texture or high bushel weight or bright colors. These characteristics favors the yield of large grit. ये characteristics जो है ये थोड़ी सी important है। हम यहाँ smaller जो corn है जैसे कश्मीरी मकई की बात करते हैं हम वो नहीं लेंगे, यहाँ हम large grain लेंगे। फ्लेकिंग के लिए हमेशा लार्ज ग्रेन यूज होता है। द लार्ज फ्लेकिंग ग्रिड्स आर प्रेशर कुक्ड इन रोटेटिंग प्रेशर कुकर्स पोजिशन्ड हॉरिजॉन्टली एट 44 to 67 kg per centimeter for 1 to 2 hours with flavoring and limited amount of water. This is only part of the process, that is batch process. So in order to feed the rest of the continuous processing line, several cookers are needed. ये बैच प्रोसेस होता है वंस आपने प्रेशर कुकर के अंदर क्योंकि आप कोई भी कन्वेइंग का या कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं प्रेशर कुकिंग का, इसलिए क्योंकि एक जगह पर ही प्रेशर कुकर जो है वो वर्क करता है। टिपिकल फॉर्मुलेशन कंसिस्ट ऑफ सिरप, शुगर, नॉन डायस्टेटिक माल्ट और माल्टो सिरप, सॉल्ट एंड वाटर। A typical formula based on 100 kg of grit is 6 kg sugar, 2 kg malt syrup and 2 kg salt. Water is added to increase the moisture content to approximately 28 to 33 पर जब water content वो absorb करेगा तभी तो वो उसकी gelatinization proper हो सकेगी। Sugar and salt are sometimes added in water, whereas the malt syrup is sometimes substituted by non-diastatic malt flour.
द एम ऑफ कुक, ये नॉन डायस्टेटिक माल्ट फ्लावर वो है जिसके अंदर अब अमाइलोलिटिक एक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है। उसका जो डायस्टेज एंजाइम उसके अंदर डाला हुआ था, उसकी पर्टिकुलर लेवल तक उसकी एक्टिविटी ऑब्टेन करके उसको जो है वो उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया गया है, ठीक है। उसके अंदर जो डायस्टेज एंजाइम था वो इनएक्टिवेटेड है, लेकिन माल्ट जो है उसके अंदर वो सारी उसकी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो हैं अमाइलेजेस की वो मौजूद हैं, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। हम इसमें वाटर क्यों ऐड करते हैं मैंने ये भी बता दिया, और हम इसके अंदर ये फ्लेवरिंग्स जो ऐड कर रहे हैं, ये सॉल्ट एंड सिरप जो ऐड कर रहे हैं वो भी बता दिया मैंने। एम ऑफ कुकिंग इज टू अचीव द प्रॉपर स्टार्च gelatinization and the development of flavor and color. The optimum cook time varies according to the size and grit hardness. The cooked grits have a translucent appearance and tend to aggregate in lumps. Then the cooked grits are conveyed to a lump breaking machine that separates agglomerated grits into single unit. Next, the cooked grits are transported to counter current dryer operating at approximately 65 degrees centigrade to reduce the moisture to 20%, followed by equilibrium in tempering bins for 6 to 24 hours. During this time, the internal grit moisture evenly distributes throughout the grit structure. This step is considered the bottleneck of traditional process. The tempered, hard, and dark cooked grains are flaked into a pair of counter rotating rolls that apply a pressure of approximately 234 tons per centimeter square. इतना प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो कुक्ड हमारे पास मतलब 20% मॉइस्चर लेवल पर कुक्ड जो ग्रेन्स आए हैं उनकी जब प्रेस किया जाएगा तो वो पर्टिकुलर फ्लेक्स की फॉर्म, फिर मज़ीद जब उसका टेम्परेचर कम किया जाता है तो वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं। होलो रोल्स आर कंटिन्यूसली कूल्ड विद वाटर इन ऑर्डर टू डिसिपेट द हीट जनरेटेड बाय फ्रिक्शन. The plastic light colored and soft flakes are toasted with hot air in cylindrical rotary. अभी भी इसकी कंप्लीशन नहीं हुई, इनको मज़ीद टोस्ट किया जाता है फॉर फ्लेवर डेवलपमेंट, टेस्ट डेवलपमेंट। मिलार्ड रिएक्शन जो टोस्टिंग करते हैं वो मिलार्ड रिएक्शन और कुछ नॉन इंजमेटिक ब्राउनिंग होती है, उससे उसका पर्टिकुलर फ्लेवर डेवलप हो जाता है। फ्लेक्स आर इवनली टोस्टेड बिकॉज दे आर सस्पेंडेड इन हॉट एयर. Most of the heat is transferred by convention. The toasting time varies from 50 seconds to 3 minutes depending on the temperature profile. Flakes are generally toasted at temperature 288 डिग्री सेंटीग्रेड टू 302 डिग्री, इतनी हाई टेम्परेचर के ऊपर टोस्टिंग की जाती है। एक्चुअली आप ये भी तो देखें ना कि जब भी कॉर्न हमारे पास आता है, अगर हम उसकी बॉइलिंग करने लगे तो इट टेक्स सो मच टाइम। सो ये अच्छे खासे हार्ड होते हैं, इसलिए जो है इन्हें वो क्रिस्प टेक्सचर और करेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर एंड कलर ऐड करने के लिए ये सब करना पड़ता है। द गोल्डन कलर इज मेनली ड्यू टू मेलार्ड एंड नॉन। बेसिकली तो जब हम इसकी डिकॉर्टिकेशन कर देते हैं तो अंदर से जो ग्रेन निकलता है वो वाइट कलर का होता है, लेकिन आप जो गोल्डन कलर का आपके पास कॉर्न फ्लेक आता है वो ड्यू टू मेलार्ड एंड नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग जो उसका कलर होता है। आफ्टर टोस्टिंग फ्लेक्स आर इमीडिएटली कवर्ड विद फ्लेवरिंग स्वीटनर्स एंड enrichment mixes. A heavy sugar coat is applied during this step for the production of sugar coated or frosted flakes, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो है वो नॉन फ्लेवर्ड भी यूज़ होते हैं। द वाटर यूज फॉर अप्लाइंग इज स्प्रिंग द फ्लेवर ring coat evaporates when it is deposited onto the hot flakes. Next, the flakes are allowed to cool down in preparation of the packaging. Optimally, the moisture to preserve crispiness is less than 2%. कहाँ वो moisture जब हमने इसकी जेलेटनाइजेशन की 33% था, फिर जब हमने इसकी रोलिंग की 20% था, और अब जो है टोस्टिंग के बाद जब आपने पैकेजिंग करनी है तो मॉइस्चर लेवल 2% है इसका। ये इज़ अ सिंप्लीफाइड डायग्राम। होल ग्रेन सॉल्ट शुगर माल्ट ऐड किया गया है, कुकिंग की है इसकी प्रेशर कुकर्स के अंदर, फिर ड्राइंग की है। ड्राइंग के बाद 20% तक जो है वो ड्राइंग की है, फिर इसकी फ्लेकिंग की है। फ्लेकिंग के बाद टोस्टेड एंड ड्राइंग, अगेन ड्राइंग, टोस्टिंग के दौरान ड्राइंग। टेम्परेचर वही वाले टेम्परेचर, बच्चों इसकी स्पेसिफिकेशंस याद कर लेना, कितने टेम्परेचर पे आपने टोस्टिंग की, कितने टेम्परेचर पे और वाटर कंटेंट पे फ्लेकिंग की, कितने वाटर कंटेंट तक आपने ड्राई किया, और ये जो कुकिंग की किस में की, कैसे की, और किस पर्पस के लिए की, एंड फाइनली द पैकेजिंग। Here is again the simplified diagram. You can see the maize grits. ये बड़े साइज़ के 3.5 to 6 इनका बुशल साइज़ होगा, मतलब जो उसके बाद इसकी ये प्रेशर कुकिंग रोटरी कुकर्स के अंदर 1 hour फॉर राइस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट्स अ कंबाइंड डायग्राम, ठीक है। यहाँ कुक ग्रेट्स और ग्रेन्स जो हैं इतना मॉइस्चर उन्होंने obtain कर लिया है
प्रेशर कुकिंग रोटरी कुकर्स के अंदर, प्लस इसके अंदर और चीज़ें भी ऐड की गई थी, जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, मॉल्ट सिरप हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड की गई। तो फिर उसके बाद कुकिंग हो गई, कुकिंग आपने की 30 से 35 मिनट्स तक प्रेशर कुकर के अंदर, ये प्रेशर बताया गया। उसके बाद जो है वो ये कुक्ड या होल ग्रेट्स हैं, इनकी लंप ब्रेकिंग मशीन में डाला और फिर इसकी ड्राइंग की 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 20% तक इसका मॉइस्चर लेवल रह गया। ठीक है, मॉइस्चर लॉस हुआ 90 kg। अच्छा जी, उसके बाद पार्शली ड्राइड ग्रेन जो हैं ये 20% मॉइस्चर पे जो है ये चलेंगे। टेम्परिंग या इक्विलिब्रियम जो है वो हम करते हैं, टेम्परेचर वो 6 to 24 आवर्स तक इतना इसकी टेम्परिंग करनी है कि इंटरनल ग्रेड्स और एक्सटर्नल ग्रेड्स टेम्परेचर सेम हो जाए। टेम्परिंग बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये याद रखिएगा। उस टेम्परिंग के बाद फ्लेकिंग होती है, फ्लेक डोट्स जो हैं उन पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है 234 टन पर सेंटीमीटर स्क्वेयर का। फिर हमारे पास आ जाती हैं फ्लेक्स, उनकी